लोग दिन भर पूछते रहते हैं ना आर्टिकलशिप करनी चाहिए या डमी करना चाहिए, और लोग कहते हैं नहीं डमी कर लो इजी हो जाएगा। ये उनके लिए सही जवाब है। जब पता चलेगा ना कि आयरलैंड में आपको आर्टिकलशिप के बेसिस पे जॉब मिल सकती है, तब उन्हें पता चलेगा कि आर्टिकलशिप की क्या इंपॉर्टेंस है। Hello and namaste, my name is Nidhi Nagori and welcome back to my channel. As you all know, I'm doing the Work Abroad series in which I'm covering different countries और मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर क्या स्कोप है आपके लिए काम करने का। इसके अलावा I also give you names of people that you can reach out to, जिनसे मैंने खुद ये इन्फॉर्मेशन ली है और आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। So all in all, I try to do everything that I can to make sure कि आपको global opportunities accessible हो। So आज की हमारी country है Ireland. That's right, Britain का neighbor and the one country that seems to gain a lot from Brexit. If you're interested, make sure you stick around till the end. Like this video, let me know in the comments what you think about it. Let me know आप कौन सा और country देखना चाहेंगे मेरे channel पर, कौन से और certifications आप देखना चाहेंगे जिन्हें मैं cover करूं. Let me know all your thoughts in the comments below and stick around till the end. Alright, so today for Ireland, I've spoken to two amazing people, Dushyant and Drishti. I'm going to be linking their LinkedIn links later in the video, but for now let's look at everything, all the suggestions that they have offered. Now one thing that I do request is आप पहले इस वीडियो को पूरा सुने। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो क्योंकि मेरे पास इन टोटल 8 पॉइंट्स हैं अपनी डायरी में। मेरे पास टोटल 8 पॉइंट्स हैं। Point number 1, there is a lot of good scope for chartered accountants, Indian CAs जो हैं हमारे, या Indian ACCAs या Indian CPAs. That's because जो traditional fields हैं of accounting, they seem to be growing a lot in Ireland, especially क्योंकि इनको Brexit से बहुत फायदा हो रहा है जैसे मैंने बताया था। Now one of the things that's really gonna help you, अगर आपके पास IFRS या US GAAP का experience है, that will help you a lot in terms of getting a visa sponsorship in Ireland. तो अगर आप एक CA हैं, ACCA हैं या CPA हैं, make sure that you focus on getting IFRS or US GAAP experience at this point. Point number 2. We have to understand why Ireland is growing. Ireland is growing because it is going to be the next EU hub उनके भाषा और उनके economic और social environment की वजह से। भाषा because वो लोग English बोलते हैं वहां पर, तो English उनकी main language है, और क्योंकि अब ब्रिटेन जो है वो Brexit हो रहा है, वो EU छोड़ रहा है, तो आयरलैंड स्टैंड्स टू गेन अ लॉट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आयरलैंड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ ग्रोथ, लॉट ऑफ रूम फॉर ग्रोथ, और यू जस्ट हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम इन टर्म्स ऑफ योर रिसर्च। 3, हायरिंग प्रेफरेंस। ना हायरिंग प्रेफरेंस क्या है? हायरिंग प्रेफरेंस यानी कि किस तरीके से लोगों को प्रेफर किया जाता है। फर्स्ट हायरिंग प्रेफरेंस ऑब्वियसली लोकल्स यानी कि आयरिश। सेकेंड हायरिंग प्रेफरेंस होती है यूरोपियंस की। थर्ड प्रेफरेंस जो है वो है अमेरिकन, और उसके बाद है अदर्स। नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये समझना जरूरी है कि हम इस लिस्ट में कहाँ बैठते हैं। सबसे पहले आयरिश लोगों को प्रेफर किया जाएगा, उसके बाद यूरोपियन, उसके बाद अमेरिकन, यानी कि हम जो है हम थोड़े अदर्स में आते हैं, तो हम 4th ऑन द लिस्ट हैं। That means that we have to have strong interpersonal skills. Now, if we want to beat all of these other people, we have to make sure कि हमारे interpersonal skills या जो communication skills है वो एकदम top notch हो. That means that we have to be good in English. We have to be good in communicating ourselves, our thoughts, and our professional knowledge out. Also, if you want me to make a video on how to make sure that you can work on your English, let me know in the comments below. I'll be happy to make a video on that. Point number 4, lot of growth is expected in the next 5 years. जैसा मैंने आपको बताया, ब्रेक्सिट के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आयरलैंड में बढ़ गए, लेकिन स्पेसिफिकली अकाउंटिंग अपॉर्चुनिटीज अकॉर्डिंग टू दृष्टि वो काफी बढ़ गए, वो बहुत इंक्रीज हो गए। इनफैक्ट कोविड टाइम्स में भी दृष्टि बता रही थी कि बाकी कहीं और कुछ रिक्रूटमेंट नहीं चल रही थी, लेकिन अकाउंटिंग रोल्स वर ऑलवेज देयर। इस लेवल पे वहां पे रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, और नेक्स्ट 5 साल में जो है उनका कहना ये है कि नेक्स्ट 5 साल तक की जो है काफी ग्रोथ रहेगी। तो आप अभी अगर आप पढ़ रहे हो या अभी अगर आप काम कर रहे हो, तो आयरलैंड इज वन कंट्री दैट आई वुड सजेस्ट यू लुक एट राइट नाउ, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अभी है। 4-5 साल बाद पता नहीं हो या नहीं हो, राइट नाउ जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको आप देखें, उनको इनकैश करने की कोशिश करें। इन अपॉर्चुनिटीज को आप कहाँ देख सकते हैं? वेल, द स्टैंडर्ड प्लेसेस, लिंक्डइन, ग्लासडोर एंड इंडीड। प्लीज गो टू दीज प्लेसेस। मेक श्योर आप जॉब डिस्क्रिप्शंस को डिटेल में पढ़ें। मेक श्योर आप देखें कि क्या रिक्वायरमेंट्स है, ACCA की कितनी जरूरत है, CPA की कितनी जरूरत है, CA की कितनी जरूरत है। मोर लाइकली देन नॉट CA इज इन इटसेल्फ वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल, बट ACCA या CPA से आपको डेफिनेटली एक एज मिल सकती है।
तो आप प्लीज ऑनलाइन अपना थोड़ा बहुत रिसर्च करते रहिए, देखते रहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट। अभी के अभी जाओ, इंडीड पे जाओ, ग्लासडोर पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ और देखो यार क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, क्या रिक्वायरमेंट्स है वहां आयरिश एम्प्लॉयर्स की, और आपके पास वो स्किल सेट्स है या नहीं, आपके पास वो एक्सपीरियंस है या नहीं। पॉइंट नंबर 5, और ये सवाल शायद सब पूछते हैं, भाई पैसे कितने मिलते हैं। दृष्टि ने मुझे बताया है कि पैसे कितने मिलते हैं, उसका जवाब फाइनली हमें मिल गया है। पैसे अच्छे खासे मिलते हैं। द पे इन आयरलैंड इज वेरी गुड बिकॉज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाई। आयरलैंड एक्सपेंसिव जगह है और इसीलिए आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। एट दिस पॉइंट आई डू वांट टू मेंशन कि डेवलप्ड कंट्रीज टेंड टू पे वेरी वेल। तो जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं या जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर लेबर लॉ स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और आपका उसमें गुजारा आराम से हो जाएगा। अगर आप पे के बारे में और ज्यादा रिसर्च करना चाहते हैं, then LinkedIn and payscale.com are the best places to go and do your research. Point number 6, let's talk about the resume. क्या करना चाहिए हमें रेज्यूमे में सो दैट हमारा रेज्यूमे हाईलाइट हो सके और रेज्यूमेज जो है वो हायरिंग मैनेजर्स या रिक्रूटर्स तक पहुंच जाए। सबसे पहले अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल से कम है सो मेक श्योर आप क्रिस्प और छोटे रेज्यूमे बनाएं। 1 पेज का रेज्यूमे इज मोर देन इनफ। अगर आपका रेज्यूमे 5 साल से ज्यादा है देन यू कैन डू अ 2 पेज रेज्यूमे। उसके 5 साल के बियॉन्ड 2 पेज लग ही जाते हैं अपना एक्सपीरियंस समझाने में, डिटेल्स में लिखने में। अगर आपको एग्जाम्पल की जरूरत है, गूगल तो आप देख ही सकते हो, लेकिन दृष्टि ने बहुत ही काइंडली ऑफर किया है, वो अपना रेज्यूमे का टेम्पलेट आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए रेडी है। आई विल गिव हर कॉन्टैक्ट डिटेल्स टुवर्ड्स द एंड। और अगर आपको जानना हो तो आप उनसे डेफिनेटली रेज्यूमे के जो है डिटेल्स ले सकते हैं और आप उस फॉर्मेट पे अपना रेज्यूमे बेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, क्या हमें इंडिया से स्पॉन्सरशिप मिल सकती है और अगर मिल सकती है तो कैसे? तो सबसे पहले यार देखो, कभी भी जब आपको वीजा स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है ना, तो वो हमेशा क्रिटिकल स्किल्स के लिए मिलती है। क्रिटिकल स्किल्स यानी कि ऐसे स्किल सेट्स जो कि बहुत वाइडली लोकल कंट्री में अवेलेबल ना हो। सो अगर आप कोई ऐसी जॉब एप्लीकेशन देखते हो तो सबसे पहले तो यू हैव टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद क्रिटिकल स्किल्स। हर कंट्री के अपने सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होते हैं, अपने सेट ऑफ क्रिटिकल स्किल्स होते हैं। ऑनलाइन आप अगर आयरलैंड के इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे, कोशिश करूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देने का, अगर आप उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या है उनके क्रिटिकल स्किल्स के रिक्वायरमेंट। हर लाइक आई सेड, हर कंट्री का अलग होता है। कनाडा का अलग है, यूएस का अलग है, हर यूरोपियन कंट्री का अपना अलग तरीका है देखने का कि क्या क्रिटिकल है क्या क्रिटिकल नहीं है। फर्स्ट फैमिलियराइज योरसेल्फ विद क्रिटिकल स्किल्स। नाउ अगर आप उस क्रिटिकल स्किल के डेफिनेशन में हो तब तो यार आपके लिए बहुत ईजी है, बिकॉज देन द वीजा रिक्वायरमेंट्स आर लाइक आप यू ऑलरेडी हैव अ क्रिटिकल स्किल। इसका मतलब है आयरलैंड को आपकी जरूरत है, तो थोड़ा सा अपना वीजा रिक्वायरमेंट थोड़ा ईजी हो जाता है वहां पर। बट अगर आपके पास, इफ यू डोंट फॉल इन दैट कैटेगरी, देन व्हाट यू शुड डू इज 1, यू शुड स्टार्ट नेटवर्किंग राइट अवे। आयरलैंड में आपको जितने भी लोग दिखते हैं अपने सिमिलर ग्रुप में, मैं आपको 2 लोगों से तो इस वीडियो में मिला ही दूंगी, लेकिन इसके अलावा आपको आयरलैंड में जितने भी अकाउंटेंट्स दिखते हैं, जितने भी अपने फाइनेंस वाले दिखते हैं, आपके सिमिलर बैकग्राउंड से जो दिखते हैं, प्लीज उनसे आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनके साथ आप कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कीजिए। और बहुत ज्यादा सवाल मत पूछो यार, सिंपल इजी सवाल पूछो, लेकिन एक रिलेशनशिप आप बना के रखो उनके साथ, ताकि आप कभी भी उनसे हेल्प मांग सको, एडवाइस मांग सको, गाइडेंस मांग सको। सो दैट इज नंबर 1, प्लीज स्टार्ट नेटवर्किंग। सेकंड, आप जब रोल्स देखते हो ना, जब आप ऑनलाइन देखते हो, जब मैंने आपको बताया कि आप लिंक्डइन, ग्लासडोर, इंडीड इन सब पे जाओ, देखो कि ये जॉब पोस्टिंग किसने की है। कोई ना कोई रिक्रूटर होगा, कोई ना कोई हायरिंग मैनेजर होगा जिसने वो जॉब पोस्टिंग की है। तो आप उनको लिंक्डइन पे खोज के फिर उनके साथ कनेक्ट करके आप उनको समझा सकते हैं व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट फॉर द जॉब। आप उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं और ये यहाँ का नॉर्मल प्रोसेस है। तो डोंट थिंक कि ये थोड़ा अलग हो जाता है, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। ये आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा। तो कनेक्ट विद द हायरिंग मैनेजर्स, कनेक्ट विद द रिक्रूटर्स, एक्सप्लेन योर स्किल्स टू देम। इसके अलावा आप जितने भी रिक्रूटर्स हैं आयरलैंड में, उनको आप कोशिश करो एचआर में आपको जो भी दिखे, या रिक्रूटिंग फर्म्स जो होती है ना, जो उनमें जो भी दिखे, उनके साथ आप लिंक्डइन पे कनेक्ट करो, उनके साथ कांटेक्ट में रहो, अपने स्किल्स उनको एक्सप्लेन कर दो बस एक बार कि यार ये मेरा स्किल है और ये मेरे स्किल सेट्स हैं। और कोई भी जॉब ओपनिंग जब आपको दिखे, प्लीज रीच आउट टू द हायरिंग मैनेजर, द पर्सन हुज पोस्टेड द जॉब्स, और उनको आप समझाओ व्हाई यू आर द राइट कैंडिडेट, ताकि वो आपको एक मौका दे इंटरव्यू का। वंस दे अग्री, उसके बाद ये बस एक फॉर्मेलिटी है, फिर आपको इंटरव्यू करने का मौका मिलेगा और इंटरव्यू करते करते ही आप सीखोगे कि कहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है, कहाँ पे क्या एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसी के साथ हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे। दिस इज गोना बी अ लिटिल बिट ऑफ अ सरप्राइज। तो मैं आपको 2 लोगों के बारे में बता रही थी, बट एक्चुअली जो लास्ट पॉइंट है ये मुझे तीसरे इंसान से मिला है। दिस पॉइंट इज फ्रॉम मनीषा। मनीषा मूव टू आयरलैंड बिकॉज ऑफ हर मैरिज, बट वी शुड नॉट अंडरमाइन हर अचीवमेंट्स, क्योंकि मनीषा को उनके आर्टिकलशिप के बेसिस पे, यू हर्ड मी राइट,
आर्टिकलशिप के बेसिस पे आइलैंड में जॉब मिली. शी वर्क्स इन फंड ऑडिट्स एंड शी वाज जस्ट सो हैप्पी टेलिंग मी अबाउट इट कि यार मुझे मेरे आर्टिकलशिप के बेसिस पे, जो मैंने आर्टिकलशिप में ऑडिट्स करे हैं उस बेसिस पे, उस अकाउंटिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे जॉब मिली इन आयरलैंड. सो अकॉर्डिंग टू मनीषा, फंड अकाउंटिंग इज अ बिग इंडस्ट्री इन आयरलैंड एंड शी ऑल्सो मेंशन्ड अ कपल ऑफ द नेम्स. बिग फोर इज बिग, सिटको इज बिग. बहुत सारे ऐसे फंड अकाउंटिंग कंपनीज हैं जिनमें ये रोल्स होते रहते हैं और जहां पे आपको आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस कंसिडर करके भी जॉब मिल सकता है. Isn't that exciting? जो लोग दिन भर पूछते रहते हैं ना आर्टिकलशिप करनी चाहिए या डमी करना चाहिए, और लोग कहते हैं नहीं डमी कर लो इजी हो जाएगा, ये उनके लिए सही जवाब है. जब पता चलेगा ना कि आयरलैंड में आपको आर्टिकलशिप के बेसिस पे जॉब मिल सकती है, तब उन्हें पता चलेगा कि आर्टिकलशिप की क्या इंपॉर्टेंस है. Alright guys, so this was all the detail that I could get for you guys from Ireland. Now obviously let me introduce you to the heroes of my video today. Three people that I've spoken about today, Dushyant, Drishti and Manisha. सबके LinkedIn links यहाँ हैं. आप इनकी प्रोफाइल देख सकते हैं अभी, and if you want, please go and reach out to them. Also, if you like this video, make sure you hit on the like button down below. यार प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल ग्रो करने में हेल्प करो. आई होप यू अंडरस्टैंड, हेल्प्स मी अ लॉट. मुझे लगता है यार मेरी जितनी भी मेहनत है दैट्स बीइंग पुट टू सम यूज. सो प्लीज गो डू द नीडफुल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी आप कर सको करो. और मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में. अंटिल देन, मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ. नमस्ते.